We are doing admission of a partner, and in the last lecture we discussed with the journal entries steps to solve the question, and we did one question also. And in today's lecture we'll go ahead, we'll solve another question. तो हमारा क्वेश्चन है विक्रम प्रज्ञा एंड द न्यू पार्टनर बीइंग अवनी. विक्रम प्रज्ञा अवनी, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं. ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है एंड यू हैव टू बी रेडी विथ. Please check the format. Revaluation account around 10 lines. Partners capital account with 3 columns. Vikram, Pradnya, Avani. Balance sheet around 15 lines. And cash bank account 6 lines. You have to be ready with this, right? Let us read the question. We'll identify, we'll put a dot wherever required, and accordingly we will go ahead. ठीक है? Right. So Vikram, Pradnya share profits and loss in the ratio 2:3 respectively. Their balance sheet as on 31st March 18 was as below. Balance sheet 31st March 18 दिया हुआ है. तो आप देखेंगे कि एडमिशन जो होगा ना वो जनरली नेक्स्ट डे ऑफ द ईयर होगा, माने 1 अप्रैल को होगा. देखते हैं. What all assets and liabilities are provided to us? Creditors, capital of Vikram, Pradnya. Assets में we have cash, land and building, plant, furniture, stock and debtors. ठीक है. They agreed to admit Avani as a partner on the following terms. The incoming partner's share is 1/4 share in future profits. He shall or she shall bring 37,500 as capital. Whenever incoming partner brings capital, the journal entry will be cash bank account debit to incoming partner's capital account. Whenever a partner comes in the business, he has to bring 2 things in the business. Number 1, share in capital. Number 2, share in goodwill. Right? Check करो. And 30,000 as his share of goodwill. मतलब 30,000 goodwill का share भी लेके आ रहे हैं अवनी. Land and building to be valued at 45,000 and furniture to be depreciated by 10%. So whichever asset liability has a revaluation, we will put a dot. Okay. So land and building, put a dot. Your furniture, put a dot. आगे जाइए. Provision for doubtful debt, that is about debtors, put a dot. And maintained at 5%. Stocks to be valued at 82,500, put a dot on stock. The capital of all partner to be adjusted in their new profit sharing ratio and excess amount to be transferred to their loan account. तो बच्चों अगर आपको याद होगा तो while discussing the entries I told you that capital adjustment I will do when we go on the problem question. तो ये क्वेश्चन में हम कैपिटल एडजस्टमेंट भी डिस्कस करेंगे. प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट. बच्चों ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है इट इज नथिंग बट रीवैल्यूएशन अकाउंट. दिस इज नथिंग बट रीवैल्यूएशन अकाउंट. ऐसे हमें समझना है, राइट? ये रीवैल्यूएशन अकाउंट ही है और कुछ भी नहीं है, बराबर है. तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है. चेक कर लो, आइडेंटिफिकेशन देख लो, जहां जहां पे मैंने डॉट रखा है वो भी ऑब्जर्व कर लो ताकि आपको पता चले. एडजस्टमेंट नंबर 3, 4 and 5 are talking about revaluation. So land and building, furniture, debtors and stock पे हमने डॉट रख दिया है. चेक करें. And now we are going ahead. I'm sure आप लोग ये फॉर्मेट के साथ में रेडी हैं. चेक करें. Done? Ready? Okay. So old ratio as given in the question is 2:3. Check करो. Vikram and Pradnya were sharing the profits and loss in the ratio 2:3. Incoming partner Avani is admitted with 1/4 share. तो सबसे पहला काम हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा. And whenever we are calculating new profit sharing ratio by following balance of one method, then your sacrificing ratio will be same as your old ratio. ये हमें पता है, right? तो in that case, I have already made one working over here. Okay, तो ये working के हिसाब से 1 minus 1/4, which is the new partner's share. So what would be the balance available to old partners? 3:4. I hope you're understanding. So 3:4, 3/4, I mean to say, would be shared among the old partner in their old ratio.
So 3 by 4 into 2 by 5, 3 by 5. You get the answer as 6 by 20, 9 by 20. ओल्ड पार्टनर का, अरे न्यू पार्टनर का, अवनी का शेयर ऑलरेडी 1/4 डिसाइड हुआ है. इफ आई वांट टू मेक डिनोमिनेटर 20, तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 5 by 5, तो ही डिनोमिनेटर 20 होगा, isn't it? तो न्यूमरेटर विल बी 5. So 5 upon 20. So it will be 6:9:5. And sacrificing ratio will be same as old ratio, which is 2:3. Right? You can pause the video and write down the working very carefully. समझ के लिखना है आपको. Right? Once you are done, we will go ahead. In this video, if you feel that my pace is going slow, you may use 1.5 speed and you can watch the video so that you can save your time. But do write the things very carefully, systematically, very important. Especially the headings very important. काफी बच्चे जो है वो short में headings लिखते हैं. They will lose mark in the examination. Please don't do it. ठीक है, so हम posting से शुरू करते हैं बच्चों. Let us start with the posting part. मुझे जो ओल्ड बैलेंस शीट दिया है उसका मैं पोस्टिंग करना चालू करूंगा. ठीक, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द लायबिलिटी साइड. क्रेडिटर 105,000, नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम. क्रेडिटर्स 105,000. विक्रम प्रदन्या कैपिटल, आई हैव प्रिपेयर्ड वन कैपिटल अकाउंट. विक्रम प्रदन्या कैपिटल. हाउ मच इट इज, चेक करो. 75 ईच. लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया. और आगे जाइए, एसेट साइड पे जाइए. कैश, तो आपने एक कैश बैंक अकाउंट बना के रखा हुआ है ना. सो दैट इज 7,500. Asset side, you have land and building 37,500. There's a dot, inner column. जहां जहां पे हमने डॉट किया था वो हम इनर कॉलम में लिखेंगे. जहां पे डॉट नहीं किया था वो आउटर कॉलम में लिखेंगे. दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग. We have plant 45,000, no dot, outer column. चेक कीजिए. Furniture, there's a dot. Debtors, there's a dot. And stock. Furniture is 3,000. As far as possible, हम लोग जो अमाउंट लिखेंगे one below the other, so that totaling will be easier for you. Furniture, inner column 3,000. Stock, inner column 75,000. And debtors 87,000, inner column. राइट, चलो यहां तक सारे बच्चे चेक कर लीजिए. मैं पूरा स्क्रीन डिस्प्ले कर रहा हूं so that you will come to know what all postings I have done. चेक करो बच्चों, प्लीज वेरीफाई. एंड देन वी शैल गो अहेड विद द एडजस्टमेंट. हर एक एडजस्टमेंट का मैं एंट्री भी डिस्कस करूंगा और पोस्टिंग भी डिस्कस करूंगा. अकॉर्डिंग टू मी जर्नल एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. एंट्री के बेस से जो आप पढ़ाई करोगे आपके लिए बेस्ट पढ़ाई होगा. यू विल बी एबल टू रिमेंबर द कंसेप्ट्स till the time you complete your maybe graduation, maybe post graduation. I think done. Now Avani shall have 1/4 share in future profits. He shall bring 37,500 as his capital. The journal entry should be cash bank account debit to Avani capital. Cash bank account debit 37,500. Cash bank account debit to Avani capital. हमने Avani capital account ऑलरेडी बनाया है.
कैश बैंक अकाउंट। याद रहे, कैपिटल ब्रॉट कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यू ऑल्सो हैव गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल 30,000 ब्रॉट, दो एंट्री पास होगा, कैश बैंक टू गुडविल अकाउंट एंड गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैं यहाँ पे एंट्रीज डिस्प्ले कर रहा हूं, ये देखिए, चेक कीजिए these entries. First entry was for amount brought as a capital, cash bank to Avani Capital. For goodwill, entry number second A and B, cash brought, cash bank account debit to goodwill account to old partners in the sacrificing ratio, which is 2:3. I wish that you should write and remember entries also बच्चों। तो आपको एंट्री लिखना ही चाहिए, you must write. You can check that goodwill is getting cancelled, डेबिट क्रेडिट है ना, आप देखो ये गुडविल डेबिट भी हुआ, गुडविल क्रेडिट भी हुआ, कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी का इफेक्ट मैं देने जा रहा हूं, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 30,000। मैं कैश में जा रहा हूं, आप भी आ जाइए। कैश अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, and thereafter goodwill account debit to old partners capital account in sacrificing ratio, in the sacrificing ratio which is 2:3. I think 12 and 18. Please check. Goodwill adjustment is over. Now revaluation of assets and liabilities, right? लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000। तो मैं लैंड एंड बिल्डिंग पे आ जाता हूं पहले। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000 मींस आई वांट टू मेक दिस 45 विच वाज अर्लियर 37,500। मतलब मुझे ऐड करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन। एसेट जब बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है ना, और प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, एसेट वुड बी डेबिट। तो आई थिंक 7,500। चेक करो, पहले यहाँ पे रिवैल्यूएशन कर लेते हैं, फिर सब साथ में इफेक्ट दे देंगे हम लोग। हाँ, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, एक के बाद एक दे सकते हो। लैंड बढ़ गया तो प्रॉफिट हुआ, 7,500 रिवैल्यूएशन क्रेडिट बाय लैंड एंड बिल्डिंग। और आगे जाइए, फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। तो देखो फर्नीचर का वैल्यू कितना था भाई, 3,000, उसका 10% माने 300 टू फर्नीचर। माय एंट्री शुड बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। जब एसेट घटता है तो लॉस होता है, लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर में से लेस करो, $2,700। Provision for bad and doubtful debt to be maintained at 5% on debtors। डेटर्स कितना है देखो, याद रहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोला है, बैड डेट नहीं बोला है, इसलिए मैं लिख रहा हूं आरडीडी। सो 5%, सो आई थिंक 8,700 का आधा 4,350। एक बार चेक करेंगे बच्चों, 4,350, so it should be 650 and 6, so 82। चेक करें अगेन, आरडीडी मतलब यू हैव चार्ज द प्रोविजन, ओके। so nominal account will be debited 4,350 nominal account to RDD account। चेक करें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, स्टॉक वैल्यूड एट 82,500। आप चेक कर सकते हैं स्टॉक घट रहा है। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इफ यू चेक 87 है और अभी हो गया 82,500। तो कितना घटा भाई, तो आई थिंक 4,500 घट गया।
My journal entry should be revaluation account debit to stock account. So revaluation debit and stock reduction hoga. It is oh my bad, it was I think 75 बढ़ गया है. My bad, it is not reduced, बढ़ गया है. मैंने डेटर का फिगर देख लिया था. It has increased by the way by 7,500. 82,500. तो बच्चों ये मेरा डेबिट नहीं क्रेडिट आएगा. हाँ, सो मैं इसको एक काट मार रहा हूं. वी डोंट हैव टू मेक इट डर्टी. एरर सबसे हो सकता है. $7,500. ऑल एडजस्टमेंट्स आर ओवर. मैं अगेन पूरा क्वेश्चन साथ में डिस्प्ले करने जा रहा हूं. वेरीफाई करो, चेक करें. राइट, मैंने रीवैल्यूएशन का भी जर्नल एंट्रीज लिखा हुआ है, वो भी मैं डिस्प्ले करूंगा, डिस्कस करूंगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड. यहां तक आप चेक कर लीजिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे. चलो, आई थिंक डन है. Let us close revaluation account. Once all adjustments are over, close revaluation account. आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड इज हेवियर. डेबिट का टोटल इज आई सपोज 4750. सो यहां पे बैलेंस आना चाहिए 10,250. 1 2 3. सो 2 revaluation profit transferred to the partners Vikram and Pradnya. Old ratio, old partner, old ratio 2:3. चलो सारे बच्चे डिवाइड करेंगे. ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. $4,100,6,150. ये प्रॉफिट्स हम ट्रांसफर करेंगे टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. द जर्नल एंट्री शुड बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. चलो ट्रांसफर करो. यू ऑल विल ट्रांसफर. So this will be transferred to the old partners old ratio. ये हमने ट्रांसफर किया बच्चों. प्रॉफिट. फिर आप यहां पे रुक जाएंगे. यहां पे कैपिटल एडजस्टमेंट आता है. यहां पे रुक जाइए. एवरीबडी स्टॉप. I'll show you the capital adjustment. After doing this, we should close the total of the partners credit side. Credit side को हम close करेंगे सारे बच्चे. और ये टोटल हम ले लेंगे. Credit minus debit. We will take the total. We will take अवनी's capital as base. देखो अवनी का कैपिटल बेस मैंने लिया. हाँ, मैंने अवनी का कैपिटल टोटल दोनों साइड पे लिख लिया और मैंने कैलकुलेट कर लिया. बैलेंस कितना है अवनी का? 37,500. नाउ व्हाट वी आर टोल्ड, चेक करो. द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब न्यू रेशियो हमने क्या कैलकुलेट किया था? नीचे चेक करो, हमने न्यू रेशियो क्या कैलकुलेट किया था? 6:9:5. So what I will consider is that if 37,500 is equivalent to 5, then what would be 6 and what would be 9? मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा. मतलब अगर ये 5 है, मतलब आप ऐसे समझ लो that 37,500 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 6, you will get the balance of 45 and 67,500. ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग किया हुआ है. I'll just show it to you. कैपिटल एडजस्टमेंट चेक करो. मैंने पहले ये रेशियो लिख दिया 6:9:5. अवनी का कैपिटल हमें ऑलरेडी मिल गया है. बैलेंसिंग फिगर 37,500. तो
5 अगर 37,500 है तो 9 कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, लाइक दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एंड दैट वे 6 कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। Thereafter 45,000 and 67,500 we will be writing in your capital account. चेक करो, हमने ये पहले फिगर लिख दिया यहाँ पे 45,000 67,500, ये हमने फाइंड किया है, कैलकुलेट किया है, याद रहे ये हमने कैलकुलेट किया है। वी वांट दिस मच टू बी हियर। in that case how much would be the excess or deficit, right? तो इसका मतलब ये आ गया कि जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है विक्रम का। विक्रम का बैलेंस, न्यू बैलेंस मुझे कितना चाहिए? 45, लेकिन इस वक्त 91,140 है। तो बैलेंस पार्ट आई विल ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। जो भी बैलेंस है इट विल बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, देखो, बैलेंस एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। So 46,140 and 31,710 would be transferred to loan account. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे मैं लेके जाऊंगा लोन अकाउंट। यू कैन चेक 46,140 31,710 लोन अकाउंट में मैंने ट्रांसफर किया। न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, एज वी कैन सी द न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर 45,000 67,500 37,500 हमें ऑलरेडी मिला था क्लोजिंग बैलेंस में, वो भी हमने ट्रांसफर किया। लास्टली क्लोज कैश बैंक अकाउंट, टोटल करो जो भी बैलेंस आया ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। asset and liability both should get tallied। हमने ये यहाँ पे भी ट्रांसफर कर दिया। बाकी के फिगर्स हमने पहले ही लिख लिए थे, यू नो, आफ्टर रिवैल्यूएशन वी हैड ऑलरेडी रिटन दैट योर बैलेंस शीट शुड गेट टैलीड। चेक करें। तो ये क्वेश्चन में आपने नया क्या पढ़ा? बाय द वे मैं पूरा क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं। ये क्वेश्चन में आपने नया क्या पढ़ा? आपने कैपिटल एडजस्टमेंट नया पढ़ा। कैपिटल एडजस्टमेंट हमने कैसे किया? टेकिंग द इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल एज अ बेस। हमने पहले रेशियो लिख लिया। ये लिखने में हमने क्या किया था? देखो यहाँ पे मैंने वर्किंग लिखा हुआ है। I wrote it as 6, 9 and 5. 5 Avni's share amount we already know. So if 5 is equivalent to 37,500, 9 will be how much? 6 will be how much? We got the new capital balance. That new capital balance we wrote in the capital account. Check करें, हमने capital account में new capital लिख दिया। This is my new capital, by the way. This is my new capital. एक बार न्यू कैपिटल मिल गया, देन यू जस्ट फाइंड द बैलेंसिंग फिगर टू बी एडजस्टेड विथ लोन। तो इतना एक्सेस कैपिटल पड़ा हुआ है विक्रम का और प्रज्ञा का, वो हम लोन में ट्रांसफर कर देंगे इन द बैलेंस शीट। एक बार पूरा क्वेश्चन आप वेरीफाई कर लो। एंड आई वुड लाइक ऑल्सो टू टॉक अबाउट द जर्नल एंट्रीज। चेक करें बैलेंस शीट के टोटल के साथ, एक बार चेक कर लो बच्चों। You can pause your video over here, complete full solution, and thereafter I want you to pay attention on the journal entries. Check करें। First entry, capital brought in by the incoming partner, cash bank account debit to incoming partner's capital account। Second entry, यहां तक ये फर्स्ट एंट्री था, ये सेकेंड एंट्री है। गुडविल ब्रॉट इन कैश, सो कैश बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ऐसे याद रखना है। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, लैंड और स्टॉक में प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट इसलिए रीवैल्यूएशन क्रेडिट, लॉस हुआ तो रीवैल्यूएशन डेबिट, राइट। फर्नीचर एंड आरडीडी में लॉस हुआ है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू आरडीडी अकाउंट। At the end, I have to close revaluation account. Okay, उसमें profit आया है, revaluation profit will be transferred to old partner, old ratio, I think 2:3 revaluation profit transfer किया है हमने by passing the entry revaluation account debit to old partners in old ratio. Lastly, capital adjustment. This is about capital adjustment. Whatever excess capital we had, that has been transferred to loan account, right? So ये फिगर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, वर्किंग में भी हमने देख लिया है कैसे होता है, राइट। आई एम श्योर ये बच्चों आपको समझ में आया होगा, राइट। एनी डाउट यू मे आस्क मी व्हेन वी मीट इन द क्लास इन पर्सन, राइट। रिवाइज द एंट्रीज,
and try to remember the steps and just follow the steps. Your question will get solved, right? See you in the next video.